Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson Sri Aurobindo's childhood. Now warm up. Many people from various parts of the world have been influenced by Indian culture and spirituality. Oprah Winfrey, the preeminent TV anchor and a celebrity of international stature, visited India in the recent past and expressed, "It is a place that invites you to see deeper into your soul." जो बहुत से लोग जो हैं इंडियन कल्चर और जो यहाँ की आध्यात्मिकता है उससे इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, जो ओपरा विनफ्रे हैं, टीवी एंकर थी। जब वो यहाँ विजिट करने के लिए आई तो उन्होंने विजिट करने के बाद क्या कहा कि ये वो प्लेस है दैट इन्वाइट्स यू टू सी डीपर इनटू योर सोल. Other world famous personalities to share similar feelings about Indian spirituality are Julia Roberts, a famous Hollywood actress, and John Lennon, who was an English musician, singer and songwriter and a founder member of the rock band The Beatles. जो और फेमस पर्सनालिटीज़ थी जो यहाँ विज़िट करने के लिए आई इंडिया के स्पिरिचुअलिटी को और उससे इम्प्रेस हुए, वो कौन कौन थे? जूलिया रॉबर्ट्स जो हॉलीवुड मूवीज़ की एक्ट्रेस हैं, जॉन लेनन जो इंग्लिश म्यूजिशियन, सिंगर और सॉन्ग राइटर हैं, और क्या है वो जो है रॉक बैंड के फाउंडर मेंबर हैं. नाउ आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर नेम्स बिलो द फोटोग्राफ्स. अब इनको ये पिक्स जो हैं आपको आइडेंटिफाई करनी है और उनके नाम यहाँ पर उनके लिखने हैं. नाउ रीड एंड एंजॉय. श्री ऑरोबिंदो वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट, फिलोसोफर, गुरु, योगी एंड पोएट. Though he lived in England for many years, he willingly joined India's independence movement. He became one of the most active freedom fighter and later a highly respected social reformer and a spiritual leader. Read further and find out more about him. जो सर ऑरोबिंदो हैं वो कौन थे? वो इंडियन नेशनलिस्ट, फिलोसोफर, गुरु, योगी और पोएट थे. जबकि वो इंग्लैंड में रहते थे, इंग्लैंड में बहुत टाइम तक रहे, लेकिन विलिंगली उन्होंने इंडियाज़ का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था उसको ज्वाइन किया और उसके बाद मोस्ट एक्टिव फ्रीडम फाइटर्स बने और बाद में जो है वो सोशल रिफॉर्मर और स्पिरिचुअल लीडर भी बने थे. नाउ रीड अबाउट हिम. On 6th February 1863, a young man not yet 21 years of age stood on the deck of a ship, gazing at the far horizon where he could see faintly the shores of his motherland. 6 February 1863 को वो यंग मैन जो अभी 21 ईयर्स ओल्ड एज का भी नहीं था, वो डेक पर खड़े होकर के वहाँ से क्या देख रहा था? वो अपनी मदरलैंड को देख रहा था. He was coming back to India after having spent 14 years in England when the ship touched Apollo Bandar, Bombay, now Mumbai, and he stepped on the Indian soil. He had a strange experience of the calm and silent self. This young man was Aurobindo Ghosh. He is known for his powerful role in the freedom movement of India and lives in the hearts of millions of people even today. जब वो वापस आ रहे थे इंग्लैंड से, जब उन्होंने अपना पहला पैर इंडियन सॉइल में रखा तो उन्होंने एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस करा, शांति का अपने अंदर. अजीब सी शांति उनको महसूस हुई. जो ये यंग मैन थे वो ऑरोबिंदो घोष थे और अपनी पावरफुल रोल जो उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में प्ले किया था उसके लिए जो मिलियंस इंडियन पीपल हैं उनके हार्ट में ये आज भी जिंदा है. When Aurobindo returned to India after 14 years, he was not concerned with spirituality. Spirituality means आध्यात्मवाद की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ जो है वो ज़्यादा कंसर्न नहीं थे. No one visualized at that time that this young man would ever be known in the spiritual world as a yogi and as the Masiha of the humankind.
उस समय किसी को नहीं पता था कि ये जो यंग मैन है ये क्या बनेंगे, इतने स्पिरिचुअल मैन बनेंगे कि बाद में जो है ये ह्यूमन बीइंग के लिए मसीहा हो जाएंगे। ये ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। Aurobindo's life has been a story of contradictory events. It is most fascinating and rich in its many-sided splendors. Sri Aurobindo is preeminent in more than one way: poet, philosopher, interpreter of Indian culture and spirituality, patriot and revolutionary. He integrated life and the spirit for the attainment of truth. जो औरबिंदो की लाइफ थी वो कॉन्ट्रडिक्टरी इवेंट से भरी हुई थी। वो केवल एक पोएट ही नहीं थे, वो फिलोसोफर भी थे, इंटरप्रेटर भी थे जो इंडियन कल्चर को इंटरप्रेट करते थे और जो यहाँ की स्पिरिचुअलिटी है वो उसको भी इंटरप्रेट करते थे, पैट्रियट भी थे, रिवॉल्यूशनरी भी थे। उन्होंने अपनी लाइफ को इस तरीके से इंटीग्रेट किया हुआ था कि वो जो है ट्रुथ की प्राप्ति के लिए अपने आप को समर्पित थे। वो ट्रुथ की प्राप्ति करने के लिए, ट्रुथ को अचीव करने के लिए जो है वो वर्क करते थे। श्री अरबिंदोस स्ट्रेंज स्टोरी ऑफ लाइफ begins with his birth on 15th August 1872. He was the third son of Krishnadhan Ghosh, popularly known as Dr. K.D. Ghosh, who was then posted as the civil surgeon at Khulna, now in Bangladesh. जो श्री अरबिंदो घोष हैं उनकी जो लाइफ है वो बड़ी स्ट्रेंज है। वो 15 अगस्त 1872 में पैदा हुए थे और जो कृष्णधान घोष हैं उनके थर्ड सन थे, जिनको पॉपुलरली डॉक्टर केडी घोष के नाम से लोग जानते थे। और ये वहाँ पर क्या थे, ये खुलना में सिविल सर्जन भी थे। नाउ दैट प्लेस इज इन बांग्लादेश। श्री अरबिंदो वॉज बॉर्न इन कैलकाटा, नाउ कोलकाता, इन द हाउस ऑफ हिज फादर्स फ्रेंड। अपने फादर के फ्रेंड के घर में उनका जन्म हुआ था। नाउ मनमोहन घोष, हु वॉज अ वेल नोन बैरिस्टर, just as Dr. K.D. Ghosh and Manmohan Ghosh were great friends, so were their wives who had the same name, Swarnalata. The name Aurobindo was given by his father. It was new at that time and hardly borne by anyone else. Aurobindo in Sanskrit means lotus and symbolizes a prophetic name for the child. जो श्री मनमोहन घोष थे और जो अरबिंदो थे वो दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे। मनमोहन बैरिस्टर थे और उनकी वाइफ भी, दोनों की वाइफ भी बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी आपस में। उनका नाम भी सेम था, स्वर्णलता। अरबिंदो नाम जो है वो उनके फादर ने उनको दिया हुआ था और अरबिंदो का जो संस्कृत मीनिंग होता है वो होता है लोटस, कमल का फूल, जो प्रोफेटिक नेम को सिंबलाइज करता है। Aurobindo's father, Dr. K.D. Ghosh, was a remarkable man who was in many ways much ahead of his time. He was one of the first Bengalis to have gone abroad for his higher studies in medicine and Aberdeen in Scotland. वो पहले थे जिन्होंने मेडिसिन की स्टडी के लिए जो एबरडीन स्कॉटलैंड में गए थे। He had also broken away from orthodoxy by marrying Swarnalata, the daughter of Raj Narayan Bose, in accordance with ब्रह्म समाज राइट्स। उन्होंने जो है जो ऑर्थोडॉक्स था समाज में, जो रूढ़िवादिता थी, उसको भी जो स्वर्णलता के साथ शादी करी, उससे उन्होंने तोड़ दिया। When he returned to India, he was like a well-groomed Englishman, determined to model himself on the British and throw away all Indian ways of life. जब वो वहाँ से वापस आए तो well-groomed Englishman की तरह से वो वापस आए। उनको देख के ऐसा लग रहा था कि इंडियन वेज जो था लाइफ का वो उनके पास नहीं था और well-groomed Englishman वो नज़र आ रहे थे। He was, however, not servile to them. He had deep love for the poor of his country. He would always try to help them with money, medicines, and in many other ways, and because of his helping attitude, people almost worshipped him as a demigod. जो अरबिंदो घोष थे, गरीबों के प्रति उनके अंदर बहुत दया थी और
उन्होंने जो है गरीबों को हर तरफ से मदद की, उनको पैसे देकर, दवाई से, और जिस तरह से भी वो कर सकते थे वो उनकी मदद करते थे। उनकी हेल्पिंग एटीट्यूड की वजह से लोग उनको डेमी गॉड की तरह से वर्शिप करते थे उनकी। As a child, Sri Aurobindo grew up in the anglicized atmosphere of the house. He was not allowed to speak Bengali. He was allowed to speak only English, and in food, dress and manners, the English pattern was strictly followed. When he was 4 years old, his father sent him alone with his other 2 brothers to Loreto Convent School in Darjeeling. It was a missionary school where all the children were British. He spent 2 years in this alien corner in his own country. The education he received was nominal, but the natural beauty of Darjeeling left its impact on his growing mind. घर में औरबिंदो के जो घर का एटमॉस्फेयर था वो टोटली एंग्लिसाइज्ड था। उनको बंगाली बोलना अलाउड नहीं था, घर में केवल इंग्लिश वो बोलते थे। बाद में उनके फादर ने उनको जो है उनके ब्रदर के साथ उनके स्कूल में भेज दिया, लॉरेटो कॉन्वेंट में, जो दार्जिलिंग में था। ये मिशनरी स्कूल था और यहाँ पे जितने भी बच्चे थे वो ब्रिटिश थे। जो वहाँ की एजुकेशन थी वो नॉमिनल थी, लेकिन जो ब्यूटी थी दार्जिलिंग की वो बहुत सुंदर थी और उसने इनके माइंड में बहुत गहरा प्रभाव डाला। श्री औरबिंदो along with his 2 brothers was sent to England for higher studies, where he stayed for the next 14 years from 1879 to 1893. The first 5 years were spent in Manchester, the next 6 in London and the last 3 mostly at Cambridge. बाद में औरबिंदो को जो है उनके 2 भाइयों के साथ इंग्लैंड हायर स्टडी के लिए भेज दिया गया, जहां पर नियर अबाउट वो 14 ईयर्स तक रहे, 1879 से लेकर 1893 तक। जो फर्स्ट 5 ईयर्स थे वो उन्होंने मैनचेस्टर में व्यतीत करे, नेक्स्ट 6 उन्होंने लंदन में, और जो लास्ट 3 थे वो कैम्ब्रिज में उन्होंने स्पेंड करे। वंस ही वेंट टू इंग्लैंड, हिज लाइफ चेंज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. During his entire stay, he was virtually cut off from his motherland, the only contact being through occasional letters, newspapers and a few acquaintances at Cambridge. अब वहाँ जाने के बाद वो अपनी जगह से, अपनी मदरलैंड से टोटली डिस्कनेक्टेड हो गए थे। वहाँ से उनका संबंध ऑलमोस्ट कट हो गया था। जो केवल वो कांटेक्ट करते थे वो लेटर्स के थ्रू से, न्यूज़पेपर या जो कुछ पहचान थोड़ा बहुत थी कैम्ब्रिज में उनके थ्रू से होती थी। As such, he grew up in entire ignorance of India, her people, her religion and her culture. However, love for his motherland was deeply rooted in him, and at the destined hour, it burst into flames. जो अपनी मदरलैंड के लिए उनके अंदर प्यार था वो उनके अंदर डीपली रूटेड था, और बाद में वो जो है एक ज्वाला में परिवर्तित हो गया था। श्री औरबिंदो not only played an important role in the struggle for India's independence, but also inspired many people to evolve spiritually and used yoga as a means of getting connected to God. Aurobindo spent long years of his life in Pondicherry, now Puducherry, and dedicated himself to practicing yoga. Aurobindo घोष क्या है? केवल उन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में ही नहीं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, बट उन्होंने बहुत से लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इंस्पायर किया। और उन्होंने क्या कहा कि योगा में कंसंट्रेट करना चाहिए, उससे क्या होता है, योगा करने से हम गॉड से कनेक्ट होते हैं। और बाद में भी औरबिंदो ने जो है बहुत लंबे समय तक अपनी लाइफ पौंडीचेरी में स्पेंड करी, जहां उन्होंने योगा प्रैक्टिस में अपने आप को डेडिकेट किया। ही हैड न्यूमरस डिसाइपल्स in his Sri Aurobindo Ashram, founded by him in 1926. He passed away on 5th December 1950. His philosophy and spiritual beliefs are followed and respected by many people all over the world even today. बाद में जो उनका आश्रम था, जो उन्होंने 1926 में जिसकी स्थापना की थी, वहाँ पर बहुत से जो है उनके अपने डिसाइपल भी थे, और जो उनकी फिलॉसफी थी स्पिरिचुअल बिलीफ्स की, वो बाद में बहुत से लोगों ने, यहाँ तक कि आज भी लोग उसको फॉलो करते हैं। आई होप दिस स्टोरी इज क्लियर टू यू नाउ. इट्स टाइम टू रिवाइज. यू कैन रिवाइज इट.